Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this video, I am giving you some advice. It is up to you to accept it or ignore it. Because I feel when persons are angry, sometimes they may not give heed to any sane advice. But the purpose of this channel is always to give right advice at right time. So I am giving advice keeping in view the circumstances that is emerging out of news item relating to RRB sponsored by Bank of Baroda. Now there are various questions in mind of subscribers. First, whether it will impact other RRBs, answer is no. Whether it will impact IBPS PO, IBPS clerk, SO vacancies, no. Whether this news will have impact or not, we are not certain about the RRB results. Now, what is the right way of handling such situation? This is an unprecedented situation. Nobody knows how to react to such news. One way is you are running a tweet campaign. And if you overindulge in something, your focus from studies goes away. Say you are running a tweet campaign. Why? That means there will be two outcomes of that. Either you will succeed or nothing will change. Say you run a tweet campaign with full vigor and ultimately you win. But side by side you are not studying. Still you will lose the battle. So if I am advising my videos to study, it is not bad by any means. Some people are making fun of it. Sir, you always talk about study, you are not talking about other issues. Other issues are not in our control. What is in our control? Study. And that's why I focus on study. Can I change the mindset of Bank of Baroda? Answer is yes or no. Can I change the scenario that is in our country? Answer is yes or no. We can protest. We can lodge our complaint. But whether government will change the stance, that is a question mark. And if we are running a campaign and we are hopeful that we will succeed, then what will succeed if we are studying along with that? Say you are tweeting, and ultimately government does not withdraw the vacancy or Bank of Baroda does not withdraw the vacancy. How you will cope up with the examination? Because exam will happen on the scheduled date and you are not studying. So who is loser? A person who has taken away focus from the study. Say you are studying for IBPS RRB officer and by chance vacancies reduces in your area. Whether this study will go waste, whether this study will not be useful in SBI PO, whether this study will not be useful in IBPS PO or in IBPS clerk, this is a point to ponder. And that's why instead of unnecessarily criticizing, if some advice is given to study, take it in a right spirit. We can only do those things that is in our control. We cannot do those things, this is not in our control. Yes, we should protest. Everybody has a right to protest. You have a Twitter, you can go there, lodge a protest, but thereafter focus on study. That will be better approach. If you are lodging a complaint, ultimately you are lodging a complaint to be successful. Ultimately, what is the objective of running a campaign? Objective is that government should change the stance. And if they change the stance, how you will get the job? Merely by change of their stance? No. By performing in competition. And for that you have to focus on study. So what is harm if somebody is advising you to keep your focus on study? I don't find any fault in that.
Yes, you need suggestion what is to be done in this situation. My suggestion is very clear. You can send tweet to the concerned authorities and make the campaign successful so that government reviews the decision. If the decision is implemented, this is definitely a bad decision. Nobody will appreciate it. I am with you as far as this campaign is concerned. But at the same time, the campaign will only be useful for you if you study along with campaign. If you don't study and if you win, still you are a loser because you will not be able to compete others. Those are studying. That is my idea. God bless you all. So this is the final video on this issue. I will not be repeating the things. And if any update comes, definitely I will give you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे कि अल्टीमेटली हमें करना क्या चाहिए. जो आरआरबी का इशू है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसको लेके बहुत प्रश्न है लोगों के मन में. तरह तरह की चीजें आ रही हैं. क्या करना चाहिए? पहला है, क्या ये सारे आरआरबीज को अफेक्ट करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये न्यूज केवल उन आरआरबीज के संबंधित आ रही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें स्पॉन्सर बैंक है. दूसरा है, क्या ये आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ की वैकेंसीज को अफेक्ट करेगा? आंसर है नहीं. क्या कोई इसमें तरीका है कि हम इस डिसीजन को बदलवा सकें? नेचुरल है कि इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि अब वो डिसीजन बदलते हैं नहीं बदलते ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है. आपके हाथ में क्या है कि आप ट्वीट कर दीजिए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दीजिए. मान लीजिए आप एक ट्वीट कैंपेन चलाते हैं जो चल रहा है और आपको चलाना भी चाहिए, और उसके बाद हम जीत जाते हैं. तो अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो इस जीत के बाद भी जो कंपटीशन है वो तो 30 तारीख को हो जाना है, तो कैसे पास करेंगे? तो यदि मैं ये सलाह दे रहा हूं कि पढ़ते रहें, तो इसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि आप क्यों बार बार कह रहे हो पढ़ने के लिए. देखो, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम वही तो करेंगे जो हमारे पास ऑप्शन है. डिसीजन चेंज होना हमारे हाथ में नहीं है. डिसीजन बदलेगा नहीं बदलेगा बैंक या सरकार, ये तो उनके हाथ में है. आपके हाथ में क्या है? पढ़ना, अपनी पढ़ाई करके अगर कंपटीशन होता है तो उसमें सक्सीड होना. अगर नहीं आती वैकेंसीज तो हम क्या कर सकते हैं? पर मेरा मानना यह है कि यदि आप आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर की तैयारी करते हो तो क्या वो तैयारी दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगी? अब मैंने एक कमेंट के जवाब में लिख दिया कि आप अपना फोकस दूसरे एग्जाम पे कर लो, तो एक उसमें सब्सक्राइबर कहता है सर बहुत आसान है ये कहना, पर आप हमारा, अरे जितना दुख आपको है उससे ज्यादा मुझे दुख है. पर ऑप्शन क्या है? अगर सरकार कुछ कर रही है या कोई बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ कर रहा है, उसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो हमें चुननी पड़ेगी ना. ऑप्शन तो यही है कि हम उसको प्रोटेस्ट करें, वो आप कर रहे हो. प्रोटेस्ट के बाद हो सकता है आप जीत जाएं, तो जीतने के बाद क्या करना पड़ेगा? सीधी नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना. प्रोटेस्ट जीतने के बाद कंपटीशन ही देना पड़ेगा. कंपटीशन में आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? पढ़ने से. तो यदि कोई आपको पढ़ने की सलाह दे रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन कैसे पास होगा? और अगर पढ़ेंगे और मान लो इस आरआरबी में वैकेंसी नहीं बढ़ती, जो कि कन्फाइंड टू फ्यू स्टेट्स है, बाकी स्टेट्स को तो अफेक्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो जो ये फ्यू स्टेट्स के कैंडिडेट हैं अगर वहां वैकेंसी नहीं बढ़ती, उनके पास क्या ऑप्शन है कि ये जो पढ़ाई है वो किसी दूसरे एग्जाम में इस्तेमाल करें. तो अगर वो अपना सारा ध्यान सिर्फ कैंपेन में ही लगा देंगे और पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे, नुकसान किसका होगा? किसी और का नहीं होगा, उस कैंडिडेट का ही होगा. तो मैंने यही सलाह दी है कि आप कैंपेन जरूर चलाओ, कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करो, पर ओवर इंडल्ज मत हो. कैंपेन करके ट्वीट करके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, ताकि अगर ट्वीट से आप जीत जाओ तो कम से कम आपके पास टाइम तो हो उसको कंपटीशन को पास करने का. मेरा ख्याल इस सलाह में कोई कमी नहीं है. जिन लोगों को अच्छी नहीं लग रही सलाह, उनकी मर्जी है, क्योंकि मेरा
काम है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। जो मैं नहीं कर सकता हूं मैं उसमें इंडल्ज नहीं होता हूं। मान लो अब वैकेंसी आए ना आए, अब इसमें बताइए आप और हम क्या कर सकते हैं। ये तो जिन्होंने फैसला करना है वही करेंगे ना। आप दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, पर कर क्या सकते हैं? कर हम वही सकते हैं जो हमारे हाथ में है पढ़ाई। पढ़ाई करते रहेंगे। अगर ट्वीट कैंपेन जीत गए और वैकेंसी ना विड्रॉ हुई तो पास तो कंपटीशन ही करना पड़ेगा ना मुझे। खाली कैंपेन जीतने से तो मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ते रहें। बाकी आपका अपना फैसला है। कोई इसके अंदर कोई किसी से ज़्यादा वाइज नहीं है। कोई मैं आपसे ज़्यादा वाइज नहीं हूँ। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपने दिमाग से काम ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर चैनल का मोटिव यही है, राइट एडवाइस एट राइट टाइम। ये चैनल सही सलाह देता रहेगा और सही सलाह ये है कि हमें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, हमें अपना प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, हमें ट्वीट कैंपेन भी चलाना चाहिए, हमें बातों को उठाना भी चाहिए, मगर कभी उसी में इतना इंडल्ज ना हो जाए कि हम पढ़ना ही भूल जाएं और हम जीत भी जाएं और फिर जब एग्ज़ाम आ जाए हम उसमें कुछ कर ही ना पाएं। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो आपके मन में भ्रम है वो दूर हो सके। ये इस इशू पे मेरी फाइनल वीडियो है। अगर कोई अपडेट आएगा तभी मैं और वीडियो डालूंगा इस टॉपिक पे। अदरवाइज जो भी कोई क्वेश्चन करेगा ये वीडियो लिंक ही मैं उसके साथ शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।